Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the secretory tissues. Secretory tissues, both external and internal perspectives, both types. Actually, if we look to the secretory system in plants, it may easily be classified into external and internal secretory system. External secretory system contain glandular trichomes, nectaries, hydrothodes, and nectary again. There are two types of nectaries which are floral and extrafloral. While the internal secretory tissues are secretory cells, cavities and ducts, and leucocyphers. The cavities and ducts are again classified into lysogenous and schizogenous subtypes, while the leucocyphers are again divided into non-articulate and articulate, while the articulate contain anastomosing and non-anastomosing subtypes. So that is an overview of the classification which we are going to discuss in this lecture. Our learning objectives are that we should learn that what is plant secretion. Secretory cells are tissues. To know about these things, that what are secretory cells or tissues. What are secretory, external secretory systems, and glandular trichomes, hydrothodes, collectors, while the internally secretory structures, for example, secretory cells and cavities and lysogenous and schizogenous cavities and leucocyphers, which again contain articulate and non-articulate subtypes. So coming to the point that what are secretions? Many substances are released from cytoplasm of cells. Of course, these are secondary metabolites as well. Among these secretions, some are beneficial to plant and some are not. Both may be there, both cases may occur. The substances may be harmful as well as beneficial. So वो कहते हैं ना कि हर दवाई में थोड़ा जहर होता है और हर जहर में थोड़ा तरियाक होता है. बहरहाल, the beneficial substances are called secretions. Cells, tissues associated with secretions are known as secretory tissues. Structure of secretory tissues varies क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये जो है ये secretions इसी तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर से निकलते हैं जिसे हम पहले थोड़ा थोड़ा जिक्र कर चुके हैं. Chemical composition of secretions also varies. Secretions may be water, nectar, salt, tannins, resins, latex, gum, digestive enzymes, hormones. देखें हाइड्रोथोड्स, शहद की मक्खी को अगर अट्रैक्ट करना हो, पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करना हो, जैसे सालसोला प्लांट साल्ट को, बहुत एक्सेसिव साल्ट को अगर बाहर निकालना हो, टेनोसोम के अंदर टेनिन होता है, आप जानते हैं टेनिन वो जो चाय में होता है जो फ्लेवर लाता है, जो एंटी कैंसर भी है. इसी तरह रेजिन्स हैं, लेटेक्स है, गम्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोर्स हैं, उनके अंदर ट्रेप्सिन पाया जाता है जैसे नेपेंथस के अंदर, और हार्मोन्स ऑफ कोर्स जैसे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन,
ठीक है, तो दी ये इनमें हो सकता है। इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी टिश्यूज। तो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन पोजीशन इन प्लांट, क्योंकि बहुत से प्लांट के अंदर क्लासिफिकेशन है हैं, तो अक्सर पोजीशन भी, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन भी एक क्लासिफिकेशन होती है। यही जिस तरह मेरिस्टेम का भी हुआ, जैसे मुख्तलिफ किस्म के और कम्प्लेक्स टिश्यूज़ में भी है, इसी तरह सिक्रीटरी टिश्यूज़ में भी एक्सटर्नल सिक्रीटरी टिश्यूज़ हैं और इंटरनल सिक्रीटरी टिश्यूज़ हैं। अब एक्सटर्नल सिक्रीटरी टिश्यू क्या हैं? व्हाट आर दीज? बेसिकली दीज अकर इन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द प्लांट के बाहरी सतह पर होते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और इनमें वास्कुलर एलिमेंट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो विद और विदाउट वास्कुलर एलिमेंट्स इस तरह से हो सकते हैं, मतलब वास्कुलर एलिमेंट्स के जाइलम वगैरह के साथ ये हो सकते हैं। जैसे वाटर जाता है तो हो सकता है कि अगर वाटर ग्लैंड हो तो उसके लिए तो जाइलम का होना ज़रूरी है, क्योंकि जाइलम तो इनऑर्गेनिक से ही जाता है। डेवलप फ्रॉम एपिडर्मस और सब एपिडर्मल लेयर, यहाँ पर हम एक और लेक्चर फिर आगे जाकर करेंगे। ये एपिडर्मस इतना ज़बरदस्त और इतना ज़रूरी है कि इसमें आपके 3-4 लेक्चर निकल आते हैं कम अज़ कम। So developed from epidermis और सब एपिडर्मल लेयर, डिफरेंट टाइप्स जो हैं इनमें ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स हैं, नेक्ट्रीज हैं, हाइड्रोथोड्स हैं, ये इनके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो ये जो है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स की तरफ आते हैं कि ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स हैं क्या। आप इधर दे सकते हो कि मेसोफिल है, एपिडर्मिस है, बेसल सेल है, स्टाक है, सिक्रीटरी सेल्स हैं और सब क्यूटिकुलर ऑयल स्टोरेज कैविटी है और एलिवेटेड क्यूटिकल है, और यहाँ पर जो सुबरीन होता है वहाँ पर ये क्यूटिकल सुबरीन नामी ये लिपिड से बनता है। हमारे अंदर भी सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, बहरहाल ये तो एक एक्स्ट्रा बात थी। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एपिडर्मल हेयर्स, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, इसको छोड़ें, इस बात पे देखें कि दीज आर एपिडर्मल हेयर्स विद सिक्रीटरी फंक्शंस। सो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स क्या हैं? ट्राइकोम हैं, हेयर्स हैं। ट्राइकोम्स के ऊपर फिर बाद में भी बात होगी। सो एपिडर्मल हेयर्स विद सिक्रीटरी फंक्शंस usually have stake and usually has stalk and a head। इसमें अगर आप देखें तो एक स्टाक होता है और एक हेड होता है, और ये स्टाक बेसिकली सिक्रीटरी सेल्स के नीचे होता है, जहां से हेड के अंदर इनके स्टोरेज कैविटी होती है, जो अमूमन अगर इधर है तो अगर ऑयल ग्लैंड है तो देखें, अगर आप ऑयल स्टोरेज कैविटी है यहाँ आप देख सकते हो। हेड इज कवर्ड विद क्यूटिकल, ये हेड इज कवर्ड विद क्यूटिकल। सिक्रीशन अकोमुलेट्स, जमा होते हैं इन द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड क्यूटिकल। Secretions accumulates in the space between the cell wall and cuticle। तो यहाँ पर ये सिक्रीशन जमा होती है। क्यूटिकल बर्स्ट टू रिलीज द सिक्रीशंस, फिर ये क्यूटिकल ये जब बर्स्ट होता है तो इससे फिर सिक्रीशंस निकलती हैं। ये एपिडर्मस है, नीचे लीफ का सरफेस है या जो भी है, मेसोफिल है ना, तो लीफ का सरफेस होगा, ऊपर ये स्टाक है और स्टाक के ऊपर हेड है और हेड के अंदर सिक्रीटरी सेल्स हैं, और सेल्स जो है वो आगे जाकर तो सिक्रीशंस बनाते हैं। तो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स एग्जाम्पल इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसेरा। आप देखते हैं कि ये एक पैरासिटिक प्लांट है, ये इंसेक्ट्स को घेर के खाता है, और आप देख रहे हैं कि ये दीज वन
You can see over here, these are glandular tipped hairs. Sticky, यहाँ sticky substances होते हैं. These are there are sticky substances over here, dear students. So the fly and insects stick to it and they digest it. They possesses vascular elements. Swollen ends of tentacles are glandular. These are the swollen ends which are glandular, and these gland contains sticky substances or whatever the purpose is. Peripheral two layer of cells are glandular. Tracheids ends here. ये दो लेयर होते हैं. These are glandular. ये देखें, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं. सो सनड्यू आपने इसे पढ़ा होगा. दैट इज इसमें यहाँ पर ये मौजूद है. जी जनाब. नाउ नेक्स्ट we come to the second example. Salt glands are in group plants. You can see over here, they help to remove salt. That is salt removed, just like the pulvinus. These are known as bulliform cells. You know that these bulliform cells are very miraculous in nature. They perform many functions. So salt glands of mangrove plants. Another is example, the third example is collector, specialized in more complex external secretory structures found in some plants, for example, Malus, Rosa, Pyrus, found in the young leaf primordia. Produce a sticky fluid which cover the leaf primordia, protect leaf surface. Collectors drop off as the leaf primordia matures, so provide protection to dormant bud. Again, here the purpose is different, but that is the C type, the third type of it. Next we have nectaries. Nectaries आपने सुना भी होगा, एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर हैं, शुगरी फ्लूइड बनाते हैं और इंसेक्ट्स को एक ख़ास किस्म का एक कह दें कि उनके लिए इंसेंटिव है कि वो अगर पॉलिनेशन करेंगे तो उनको स्वीट फ्लूइड दिया जाएगा. तो the nectar attract insects, help in pollination. There are two types, floral nectaries associated with flowers, common types through pollination हैं. Extra floral nectaries which are present on vegetative parts, petiole, pedicel, stem. That is extra floral nectaries. Extra floral nectaries are common in families of Verbenaceae, Bignoniaceae, Euphorbiaceae. In euphorbia, you can observe the extra floral nectaries. Remember it, it may help you in your lectureship or CSS exam as well. So next we have the nectaries. Next nectaries occur in epidermis, hypodermis or trichome. The layer between the epidermis is known as hypodermis. Hypo means below. Trichomes, hair-like structures. Nectaries have thick cuticle. Nectar accumulate between cuticle and cell wall. Cuticle rupture and release nectars. Nectaries are associated with vascular structure, for example, phloem. And phloem is the hub of sugar, sweet fluid. Sugar. Insects are very much attractive to the sugars, and these sugars are taken by the honeybee, and honeybee
synthesize honey inside its body. Secretion of nectars lasts for short time. Next, we have the hydrothodes. Now, hydrothodes are actually water glands modified for especially on a leaf which exude drops of water. Hydrothodes facilitate guttation, oozing from the margins and tips, the oozing of water from the margins, also called as water stomata. Guttation, the secretion of droplet of water from the pores of plants, that is, अगर आप में से कोई सुबह खेजी का आदि है जो आजकल बहुत कमतर है, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 12 बजे। तो अगर आप तो आप ड्यू ड्रॉप्स देख सकते हो। बहरहाल, what are hydrothodes? Hydrothodes is a type of secretory tissues in leaves. So commonly found in angiosperms made up of a group of living cells with numerous intercellular spaces. These cell lack chloroplast. These cells are called epithelium. Epithelium. ठीक है, तो हाइड्रोथोड्स जो हैं ये क्या करते हैं कि इनसे वाटर निकलता है और ऐसे सेल्स हों जिनको एपीथम कहते हैं। वास्कुलर बंडल्स ऑफ एंड्स इन एपीथम यहाँ पर रुक जाते हैं, वास्कुलर ट्रैकीड्स वगैरह वास्कुलर बंडल यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। एपीथम आप देख रहे हैं, ये सेल्स कहलाते हैं। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो ये सेल्स एपीथम कहलाते हैं। यहाँ पर वास्कुलर बंडल ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर इसके बाद पानी का सफ़र शुरू होता है। These cells open out into one or more subepidermal chambers. Substomatal chambers communicate with exterior through pore. That's why इसीलिए इसको वाटर स्टोमेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर स्टोमेटा। अच्छा, वाटर स्टोमेटा क्या है? पोर्स विच फैसिलिटेट गटेशन। अब ऐसे पोर्स ये अगर आप देखें, स्टोमेटल चैम्बर है तो ये वाटर स्टोमेटा रिजेंबल एन ऑर्डिनरी स्टोमा इन शेप एंड स्ट्रक्चर। दे आर लार्जर देन ऑर्डिनरी स्टोमेटा। दे डू नॉट हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म। तो इसमें जब मुसलसल पानी ज़्यादा हो जाता है तो खुद ब खुद निकल आता है। अगर इससे निकलता भी है तो गर्मी के वक्त तो नज़र आपको नहीं आएगा क्योंकि वो वेपर्स बन जाएंगे जल्दी से। ख़ासकर जब ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती और रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रूट तो पानी लाता है, उधर स्टोमेटा रात को बंद होते हैं, तो फिर हाइड्रोथोड्स के इधर एपीथम के ज़रिए से और फिर इसके वाटर स्टोमेटा के ज़रिए से ये पानी निकलता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये गार्ड सेल है, स्टोमेटल चैम्बर है, एपीथम है, इंटरनल सेलुलर स्पेस है और ट्रैकीड्स हैं। ट्रैकीड्स यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं और फिर यहाँ से वाटर निकलना शुरू हो जाता है। सो दे आर लार्जर। एक बात तो ये भी है कि ये लार्जर होते हैं ऑर्डिनरी स्टोमेटा से और इनमें ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म नहीं होता। क्या नहीं होता? ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म नहीं होता। जी जनाब। अब दूसरे बड़े कैटेगरी की तरफ आते हैं और उसको कहते हैं इंटरनल सिक्रीटरी टिश्यू।
अब secretory tissue embedded inside the plants store secretory products, तो ये तो प्लांट्स के अंदर होते हैं, मे बी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर, इट डजेंट मैटर कि सिंगल सेल है मल्टी सेलुलर है, लेकिन हमें इसके फंक्शन को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है और ऑफ कोर्स दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी ज़्यादा, सम टाइम हाईली स्पेशलाइज्ड, सो दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड सम टाइम, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल सिक्रीटरी टिश्यूज आर देयर, तो बेटा आपके पास तीन हैं, कितने हैं, तीन, internal secretory cells, secretory cavities and ducts, लेटेसिफर्स। फिर लेटेसिफर्स की दो अकसाम हैं, नॉन आर्टिकुलेट लेटेसिफर्स, आर्टिकुलेट लेटेसिफर्स। फिर आर्टिकुलेट के दो अकसाम मजीद हैं, एनास्टोमोजिंग यानी आर्टिकुलेट एनास्टोमोजिंग लेटेसिफर्स और नॉन एनास्टोमोजिंग यानी आर्टिकुलेट नॉन एनास्टोमोजिंग लेटेसिफर्स। समझ में आई बात? अच्छा, सिक्रीटरी सेल्स, सिक्रीटरी सेल्स स्पेशलाइज्ड सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, दे सीन डिस्पेंस्ड इन नॉर्मल सेल्स, ये नॉर्मल सेल्स के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं, आल्सो कॉल्ड एज इडियोब्लास्ट। ये हम अगर आपको पेरेन्काइमा के बारे में पता हो तो हमने पेरेन्काइमा में भी इस तरह से एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, मे बी इडियोब्लास्ट में बी आइसोडायमेट्रिक और elongated ट्यूब लाइक। सो दीज आर सिक्रीटरी सेल्स, स्पेशलाइज्ड होते हैं, दूसरे सेल्स के अंदर बिखरे हुए होते हैं, इनको इडियोब्लास्ट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इडियोब्लास्ट कंटेन सिक्रीटरी कंटेंट्स, तो इनमें टेनिन्स, म्यूसिलेज, ऑयल्स, ठीक है ना, और मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है ना, रेफाइड्स एंड सिस्टोलिथ्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। कहीं पर आपको क्वेश्चन वगैरह हो तो आप बेशक मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा, बेफिक्र रहें। अच्छा, अब आते हैं सिक्रीटरी कैविटीज एंड डक्ट्स की तरफ। सिक्रीटरी कैविटीज और डक्ट्स जो हैं, दे आर cavities inside the plant body with secretory contents. Two types इनके अंदर हैं, अब cavities based on the formation, lysogenous और schizogenous cavity। अब जरा lysogenous cavity की तरफ देखते हैं, found by the lysis of some cells filled with secretory content। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें बर्स्ट हो जाते हैं और उनके अंदर सिक्रीटरी कंटेंट होता है, यूजुअली इरेगुलर साइज और शेप के होते हैं, ये अक्सर रोटेसी सिट्रस के फैमिली में बड़े कॉमन मौजूद होते हैं। शाइजोजेनस, शाइजस का मतलब है, देखें अगर लाइजस बर्स्टिंग है तो शाइजो का मतलब है सेपरेशन, शाइजो शाइजस जब दो हिस्से आपस में अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेशन ऑफ सेल्स बाय ब्रेकडाउन ऑफ मिडल लेमेला। तो कुछ सेल्स बर्स्ट नहीं होते बल्कि वो आपस में सेपरेशन, लेकिन लाइजो में बर्स्टिंग होती है, शाइजो में सेपरेशन होती है, ये बात याद रखें। तो फॉर्म बाय सेपरेशन ऑफ सेल्स बाय ब्रेकडाउन ऑफ मिडल लेमेला, कैविटीज आर मोर और लेस आइसोडायमेट्रिक, एक जैसे डायमीटर के होते हैं, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। यहाँ अगर आप देखें रेजीन के जो डक्ट्स हैं ये शाइजोजेनस होते हैं, एपिथेलियल सेल आपस में अलग अलग हो जाते हैं, बर्स्ट नहीं होते और इनके अंदर कुछ रेजीन वगैरह जमा हो जाता है।
So these are called epithelial cells. Epithelial cells are surrounded by casing. अब यहाँ epithelial cell जो है ये आपको क्या नज़र आएगा कि ये कैसिंग सेल्स में होते हैं. कैसिंग सेल्स आर थिक वॉल्ड. ये थिक वॉल्ड होते हैं. सिक्रीट epithelial cells secrete the contents. तो ये कैसिंग सेल्स होते हैं. इट सराउंडेड बाय कैसिंग. जैसे आप कहते हैं ना जो जिसने इसका केस बनाया होता है, जिसने इसका जो केस होता है, जो उसका शेप होता है सारा, वो इससे बनता है, सराउंड किया होता है. ये थिक वॉल्ड होते हैं. जबकि एपिथेलियल सेल्स सिक्रीट द कंटेंट. और इसके इर्द गिर्द कौन से सेल्स होते हैं? कैसिंग सेल्स होते हैं. कौन से सेल्स होते हैं? कैसिंग सेल्स होते हैं. और अंदर कौन से होते हैं? एपिथेलियल सेल होते हैं. एपिथेलियल सेल क्या करते हैं? एपिथेलियल सेल सिक्रीट द कंटेंट फाउंड इन ऑस्ट्रेसी, कॉनिफेरल्स, एपिएसी. इन जैसे स्ट्रक्चर्स में ये पाया जाता है, इन जैसे फैमिलीज के अंदर. लेटेसिफर्स. अब लेटेसिफर्स, these are also known as leticifer tissues, fused tube-like cells filled with fluid called latex. इनके अंदर आपको लेटेक्स मिलेगा. तो लेटेसिफर्स के अंदर लेटेक्स होता है. कैन अकर इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, यूजुअली कन्फाइंड टू द फ्लोएम. बार्क के अंदर होते हैं. अब इनके दो फॉर्म्स यहाँ पर आप देख रहे हैं लेटेसिफर्स, और ये पेनिट्रेट कर जाते हैं. तो ये नॉन आर्टिकुलेट लेटेसिफर और आर्टिकुलेट लेटेसिफर. अब इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं. अब नॉन आर्टिकुलेट लेटेसिफर्स क्या हैं? आल्सो कॉल्ड एज लेटेक्स सेल्स, ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सेल. अगर जो एक सेल से बने, इलंगेट बाय इंट्रूसिव ग्रोथ, दूसरे सेल्स के अंदर तक चले जाते हैं. ऑक्युपाई इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द अदर सेल्स. तो इंट्रूसिव ग्रोथ होती है. मे बी और मे नॉट बी ब्रांच्ड. अनब्रांच्ड यूफोरबिया में है, जेट्रोफा में है, और इसी तरह नीरियम और ये एस्क्लेपियस में है, फाइकस में है, और फाइकस में ब्रांच्ड भी है. तो ये आपको ये ऐसे मिलेंगे. आर्टिकुलेट लेटेसिफर्स कंपाउंड लेटेसिफर कहलाते हैं. ओरिजिनेट फ्रॉम सीरीज ऑफ सेल. देखें, नॉन आर्टिकुलेट जो है वो सिंगल सेल से बने होते हैं. आर्टिकुलेट लेटेसिफर जो हैं सीरीज ऑफ सेल से बने होते हैं. सेल्स अरेंज एंड टू एंड, कॉमन वॉल में इंटैक्ट और डिसऑर्गेनाइज. तो ये भी हो सकता है. रिजेंबल जाइलम वेसल्स. तो इसीलिए इसको लेटेक्स वेसल कहते हैं. अब इसके आर्टिकुलेट के एनास्टोमोजिंग और नॉन एनास्टोमोजिंग दो अकसाम हैं. आर्टिकुलेट एनास्टोमोजिंग, इनमें हम कहते हैं कि लेटरल कनेक्शंस आर एस्टेब्लिश्ड विद सिमिलर लेटेसिफर्स टू रेटिकुलेट फॉर्म अ नेटवर्क स्ट्रक्चर. तो लेटरल कनेक्शंस आर एस्टेब्लिश्ड, और जैसे हेविया में है, मैनेहॉट में है, इसी तरह आर्टिकुलेट नॉन एनास्टोमोजिंग में नो लेटरल कनेक्शंस. आइपोमिया में, मूसा में, कन्वल्वुलस में आर्टिकुलेट नॉन एनास्टोमोजिंग हैं, क्योंकि इनमें लेटरल कनेक्शन नहीं होंगी. अगर लेटरल कनेक्शन है तो आर्टिकुलेट एनास्टोमोजिंग है. एक एनास्टोमोज वैसे भी जब एक दूसरे के इर्द गिर्द बल्क आ जाते हैं ना, तो उसको एनास्टोमोज कहते हैं. लेकिन बेसिक बात ये है कि दे lateral connections are established, so they are articulate. If no lateral connection, they are non-anastomosing. Articulate non-anastomosing means lateral connections are established, and non-anastomosing का मतलब है lateral connections established है, और non-anastomosing का मतलब है कि no lateral connection. उसकी मिसाल हेविया है, इसकी मिसाल मूसा है, एपोमिया है, कन्वल्वुलस है. ये जनाब इसकी मिसालें हैं. अच्छा, अब
सेल स्ट्रक्चर ऑफ लेटेसिफर्स। हाँ हाँ हाँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसी वजह से हाँ 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 बोला, समझ रहे हैं ना, पोस्ट है। सेल्स कंटेन लिविंग प्रोटोप्लास्ट, सेल्स कंटेन लिविंग प्रोटोप्लास्ट, वैक्यूल्स वेल डेवलप्ड हैं इसके, वैक्यूल स्टोर लेटेक्स, सेल यूजुअली मल्टीन्यूक्लिएटेड, लेटेक्स में भी मिल्की वाइट और कलर्ड और कलरलेस, मिल्की वाइट यूफोरबिया में है, शायद आप इसे पश्तो में मंदाणु बोलते हैं, हेविया, नीरियम ओडोरम गंडेरे शायद बहुत से पश्तो में, और पपावर सोमेनिफरम का ऑरेंज या येलो होता है, वही जिससे अफीम बनता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ लेटेक्स मुख्तलिफ किस्म का होगा। मतलब लेटेसिफर्स क्या हैं? लेटेसिफर्स वो हैं जो लेटेक्स यानी जिससे दूध सा निकलता है, फिर इनकी अकसाम होती हैं। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ी। तो ये जो मिल्की वाइट है यूफोरबिया में है, नीरियम में कलरलेस है, और पपावर सोमेनिफरम में या पपावर फैमिली में, पपावरेसी में ऑरेंज और येलो किस्म का होता है। सो केमिकल कंपोजिशन ऑफ लेटेक्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अल्कलाइड से भरा हुआ होता है। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, अल्कलाइड की जितनी अकसाम हैं सारी पपावर में पाई जाती हैं। ऐसे ही थोड़ा सा इसको ऑनर देने के लिए कहते थे। कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक एसिड, अल्कलाइड्स, टर्पीन्स, रेजिन्स, एंजाइम्स। तो कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कलाइड्स, टर्पीन्स, रेजिन्स, एंजाइम्स। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। लेटेक्स ऑफ यूफोरबिया मिलाई, वो जो आपके जब आप आते हैं तो बाहर पड़ा होता है अक्सर चेयरमैन के ऑफिस के बाहर, ये पौधा यूफोरबिया मिलाई। कंटेन डम बिल शेप्ड स्टार्च ग्रेन्स। लेटेक्स ऑफ पपावर सोमेनिफरम कंटेन अल्केलाइड मार्फिन कोडीन। तो यही डाइसिटाइल मार्फिन जिसको हेरोइन जिसे कहते हैं, इससे बनती है डाइसिटाइलेशन से। लेटेक्स ऑफ कैरिका पपाया कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन पैपीन, सॉरी, इसी तरह पेपिन। लेटेक्स ऑफ एक्रस सपोर्टा सेपोर्टा कंटेन चिकल्स यूज्ड फॉर मेकिंग च्युइंग गम। तो इससे इसी तरह लेटेक्स ऑफ हेविया कंटेन रबर, रबर पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द लेटेक्स। और पूरी दुनिया चल रही है इस पे, बल्कि दौड़ रही है। When latex is removed from plants, the rubber particles clump together. तो बड़े इम्पोर्टेंट है और स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको भी, और उम्मीद है आप मुझे पढ़ के तो आपको बहुत सारे उम्मीद ये है कि आपको थोड़े क्वेश्चन अराइज होंगे, कंफ्यूजन अराइज होगी, अच्छी बात है। ठीक है, कुछ सीखोगे तो अच्छी बात है। अल्लाह आपको खुश रखे, घर में रहें, सेफ रहें, एहतियात करें, मास्क कहीं जाएं तो बांधें, और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।